Friends, in the previous lecture, I have taught chapter 2, People as Resource. All of you know that there are many natural resources found on earth, and all these natural resources are utilized by human beings with their ability, knowledge and capability. That is why human being is known as one of the best resource. And after gaining resource, human beings are also beneficial in all way of life, such as in the field of science, cottage industry, a small scale industry, large scale industry, and so on. And next point, qualified parents and active parents maximum invest their money on medical facilities and education because they know the importance of education. After investment of large amount, it will be returned in future in the form of high class jobs. And with the help of two examples, it is proved that what is the importance of education and also health care. यहाँ जो बताया गया है कि एक शिक्षित और एक्टिव पेरेंट्स मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अपने बच्चों के स्वास्थ्य और शिक्षा पर करते हैं, क्योंकि बच्चों के ओवरऑल प्रॉपर ग्रोथ के लिए बैलेंस डाइट बहुत ही आवश्यक है. Such type of nutrients in which carbohydrate, fats, proteins, vitamins and minerals are found to the overall growth of the body of the student. इसलिए कि जब शरीर स्वस्थ रहेगा तभी कोई भी स्टूडेंट पढ़ सकता है. और सेकेंड, मैक्सिमम कैपिटल, अधिक से अधिक रुपए बच्चों के शिक्षा पर खर्च किया जाता है, क्योंकि एक शिक्षित गार्जियन अच्छी तरह समझता है कि जितने भी शिक्षा पर खर्च करेंगे, जितना भी हायर एजुकेशन प्राप्त किया जाएगा, वह भविष्य में फ्यूचर में अधिक से अधिक बेनिफिशियल होगा. और इसी को दो स्टोरी के रूप में प्रूव किया गया है, द स्टोरी ऑफ शकल एंड द स्टोरी ऑफ विलास. What is the importance of education? With the help of education, how Sakal got job and enjoy his life with happiness. Sakal is 12 years old, a student. His father's name is Bhuta Chaudhary, who works in agricultural farm. His mother's name is Sheila, who looks after domestic poor. He has one younger brother and younger sister. Their names are Jitu and Situ. His uncle's name is Shyam. After past matriculation examination, he is idle, वह बेकार है, at home without any work. Bhuta Chaudhary wanted to educate his son Sakal, so he admitted in the school, and after passing the higher secondary education, Bhuta Chaudhary wanted to admit in the vocational course in computer. So he admitted, and after passing the vocational course,
Sakal joined in private firm of computer, and with the help of his ability, knowledge, he created a new type of software which is very beneficial for the company and also for the agricultural farm. The owner of the company, pleased with the work of Sakal, and as a rewarded he was promotion. He got promoted. मतलब सकल की जो कहानी है, सकल एक 12 वर्ष का लड़का है, उसके पिता का नाम बूटा चौधरी है जो कृषि संबंधित वर्क करते हैं। माँ का नाम शीला देवी है जो घरेलू काम में व्यस्त रहती है। 2 छोटे भाई बहन हैं, एक का नाम जीतू और दूसरे का नाम सीतू है। उसके अंकल मतलब सकल के अंकल जिसका नाम श्याम है, मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन पास करने के बाद वो अपने पढ़ाई को स्टॉप कर दिया। रिजल्ट यही हुआ कि वो आइडल बेकार घर पर बैठा हुआ है बिना किसी वर्क के। इसको देखते हुए सकल के फादर बूटा चौधरी चाहते थे कि सकल को अच्छे ढंग से पढ़ाएं, इसलिए वह स्कूल में एडमिशन भी कराएं। हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन पास करने के बाद बूटा चौधरी जानते थे कि हायर सेकेंडरी एग्जामिनेशन के बाद यदि उसकी पढ़ाई को स्टॉप कर दिया जाए तो वह भी अपने अंकल की तरह ही बेकार घर पर बैठा रहेगा। इसलिए वे बैंक से लोन लिए और कंप्यूटर में वोकेशनल कोर्स कराए। इसलिए भी कराए कि सकल भी मेरिटोरियस स्टूडेंट था और पहले से ही बूटा चौधरी ने सकल के हेल्थ पर भी अधिक से अधिक फोकस किया था, इसलिए वह स्वस्थ भी था। और अंत में वोकेशनल कोर्स कंप्लीट करने के बाद वह एक प्राइवेट कंप्यूटर फर्म में वह उसे जॉब मिला, लेकिन वह अपने बुद्धि के द्वारा, अपने एबिलिटी के द्वारा एक नए प्रकार का सॉफ्टवेयर मशीन क्रिएट किया जो एग्रीकल्चरल फील्ड में बहुत ही बेनिफिशियल साबित हुआ और कंपनी को भी अधिक से अधिक प्रॉफिट मिला। इसलिए द ऑनर ऑफ द कंपनी का मालिक खुश होकर जिस पोस्ट पर था उसको रिवार्ड के रूप में उसको प्रमोशन दिया गया। तो यहाँ पर समझे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का महत्व क्या है। और एक और स्टोरी है, द स्टोरी ऑफ बिलास, जो दोनों एक ही गांव में रहते थे, सेमापुर गांव में, लेकिन ऑन द अदर हैंड द कंडीशन एंड सिचुएशन ऑफ द सकल इज, ठीक उसके विपरीत बिलास की कंडीशन थी, जो अस्वस्थ था, अर्थराइटिस बीमारी से ग्रसित था, वह पढ़ नहीं सकता था, क्योंकि जो स्टूडेंट अस्वस्थ रहेगा वह किसी भी वर्क में मन नहीं लगा सकता। अब यहाँ जो बताया गया है कि ह्यूमन रिसोर्स कैन बी मेक यूजफुल ऑफ लैंड एंड कैपिटल, जितने भी ह्यूमन रिसोर्स है वह लैंड का, कैपिटल का यूज करके मैक्सिमम प्रॉफिट गेन कर सकता है। इंडियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज ए ड्रामेटिक एग्जाम्पल ऑफ रिसोर्स, क्योंकि 1960s के लास्ट में जो ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू हुआ था उसके पहले वाले चैप्टर में भी बताया गया है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के शुरू होने के पहले ट्रेडिशनल मेथड से एवरेज क्रॉप का, स्पेशली व्हीट का प्रोडक्शन होता था, लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन के शुरू होते ही फर्स्ट पेज में पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अधिक से अधिक बेनिफिशियरी। नतीजा हुआ कि 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड में जो ट्रेडिशनल मेथड से 1300 किलोग्राम गेहूं का उत्पादन हो रहा था, वह ग्रीन रेवोल्यूशन के माध्यम से 3200 किलोग्राम पर हेक्टेयर उत्पादन बढ़ गया। तो पॉपुलेशन बिकम्स ह्यूमन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मेडिकल केयर। एंड यह टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में
हम लोग आएंगे द स्टोरी ऑफ विलास और उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे, अंतर तुलना बताएंगे व्हाट इज द differences between the story of Vilas and the story of Sakal. Thank you.